Hello, good morning everyone. How are you? I hope you are fine. So in the previous chapter we have completed, that was Hai Maharaja. I hope you have understood that completely. Now I'm also going to explain you the next chapter. Today I will tell the summary of the chapter one by one, taking the help of the characters. So my dear students, today we are having a chapter, the imp and the peasant's braid. इम्प का मतलब होता है सो डेविल, जो होता है छोटा, मतलब एक दूत के रूप में एक भूत होता है, वो होता है ओके, एक छोटा भूत. एंड द पीजेंट इज ए फार्मर, किसान. द स्टोरी, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज दिस, द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. And this story is written by Leo Tolstoy, who was born in 1828, was died in 1910. Okay, 10th class RBSc we are having. I hope you have understood the chapter. And one more thing I want to say you, जो भी मैं होमवर्क दूँ आप मेरे को अपने व्हाट्सएप पे सेंड किया करो. इज दैट क्लियर? अब की बार जो होमवर्क दूंगा वो मुझे अपने व्हाट्सएप पे चाहिए. सो now what we are going to discuss about this chapter, that the main characters, peasant and the imp. There are the two main characters in this story. The main points which I am going to tell you: introduction of a chapter and characters. सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा. Story of braid, ये points टुकड़ों में बांटे गए हैं. Imp as a working man, advice of imp, making of vodka, change in peasant, drinking vodka and its effect. Got it? Understand? So इसमें क्या है, what we are going to discuss, the chapter is totally related to a story of a farmer. You know, farmer जो होते हैं, they are also known as a very hard working person. They are earning money by showing the crops. And innocent also, they also known as innocent man. और एक अच्छी रेस्पेक्ट होती है उनकी. इन और कंट्री ऑल्सो वी आर हैविंग लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर फार्मर्स. बट इसका जो मेन मोटिव है, द मेन वी कैन से थीम ऑफ द चैप्टर जो अपन की है, ये क्या है कि द वॉट एवर वी आर हैविंग, इट इज इनफ फॉर अस. इफ वी नीड मोर देन दैट व्हाट वी नीडेड, अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता से हमें अधिक हमारे पास कोई चीज़ होती है, तो वो हमें क्या करती है, दैट विल रूइन अस, वो हमें बर्बाद कर देती है. हम उस चीज़ का मिस यूज करते हैं. इन दिस स्टोरी वी विल ऑल्सो डिस्कस लाइक सेम. एक नॉर्मल पर्सन, ए नॉर्मल फार्मर, what was the work of the farmer? Is used to go his field and plow there, work like a, we can say, hard person, a person who is working hard and doing his work, and came in the evening and sleep in the night. Satisfaction type of life he was living. But you know, कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती. इन दैट सेम वे एक इम्प जो होता है, डेविल का एक मैसेंजर, जो उसका एक कहते हैं कि छोटा डेविल, राक्षस जिसे बोलते हैं अपन, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी, मतलब सिंपल और अच्छी लाइफ. तो व्हाट विल हैपन इन दिस कैरेक्टर वी विल डिस्कस. गॉट इट? तो व्हाट क्या है कि द फार्मर हैड इनफ, वी कैन से ग्रेन, हैड इनफ मनी, न ज़्यादा गरीब था न ज़्यादा पुअर था, अपनी आजीविका चला रहा था. बट इम्प हैड स्पॉइल्ड हिज लाइफ. इम्प ने उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया. हाउ ही हैड स्पॉइल्ड हिज लाइफ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, हाउ ही चेंज ए नॉर्मल पर्सन इन ए वाइल्ड एनिमल. एक नॉर्मल बंदे को उसने वाइल्ड एनिमल की तरह चेंज कर दिया, यानी जंगली जानवरों की तरह बिहेवियर करने लगा. गॉट इट? सो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो पीजेंट इज ए फार्मर. इन जो है एक डेविल का जो छोटा रूप है, उसका जो दूत वगैरह अपन बोल सकते हैं, वो है. इन दिस स्टोरी, इंट्रोडक्शन ऑफ ए चैप्टर एंड कैरेक्टर्स. The chapter consists two main characters. One is farmer, second is imp. In this chapter, what we are going to discuss, that how
A imp changed the person, changed a nice person into the wild one. Got it? So now, story of Braid. The starting of the chapter. What happens? One day, as usual, daily routine. One day the imp was going in his field to plow. जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए जाता अपने खेत में. And what he was taking with him, he was taking a breakfast. जो खाना होता है उसका, he was taking his breakfast with him. Usually we also belongs to a farmer family. हमारे पेरेंट्स भी खेतों में जाते हैं तो अपना ब्रेकफास्ट या लंच साथ लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे बैठ के खाते हैं वो. In that same way, the peasants was also doing the same thing. And he was taking his breakfast, and what did he do? He put his breakfast under the bush. झाड़ी के अंदर रख दिया, उसके ऊपर कोट वगैरह डाल दिया. He put his breakfast under the bush and he was doing his work. खेत जोत रहा था वो. Then जब उसके घोड़े या फिर उसके बैल जो हैं, they were tired, जब वो थक गए, then he decided to take his breakfast. He went there where the breakfast was we can put by him. He did not see that. That was completely disappeared. वहाँ पे था ही नहीं. Somebody had stolen his bread. Thus, we can see peasant. He look here and there and trying to find out, but nobody was there, and his breakfast was also missing. So he was also, we can say, थोड़ा सा निराश हुआ वो. He was totally, we can say, he was a little bit depressed. थोड़ा दुखी भी हुआ because भूखा मर रहा था वो. But he did not care about that. और क्या सोचा उसने कि it is okay, ये मुझे नहीं मिला तो किसी को तो मिला है ना. I think a person who has taken this needed more than me. That is why he said okay, don't worry. He did not say any abusing word about the person who had stolen the money, we can say bread. He did not crush him, he did not abuse him. उसने उसको गालियाँ भी नहीं दी, कुछ भी नहीं बोला. उसने बोला कि जिसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसको बंदे को होगी जिसने ये उठा लिया यहाँ से. उसने ये भी नहीं कहा कि चुरा लिया, जिसने ये उठा लिया. एंड ही स्टार्टेड टू वर्क अगेन वो अपना काम करना शुरू कर दिया, खेत जोत रहा था. द पर्सन हु स्टोल द ब्रेकफास्ट वाज ए इम्प. वो था इम्प, उसने वो ब्रेकफास्ट चुराया था. बट व्हेन इम्प came to know that the farmer didn't say anything to a person who had stolen his breakfast or bread, he did not say anything, he did not abuse him, he did not say wrong words about him, he did not pray to God that he would go to hell, nothing. that imp को ये बात चुभ गई. imp बड़ा नुकसान नाराज हुआ, क्योंकि शैतान जो होते हैं ना, उनके दिमाग में शैतानी चलती है, तो वो लोगों को अपने तरीका ही बनाना चाहते हैं, कुछ बुराइयां. तो उसको वो बड़ा निराश हुआ. And he was totally depressed, and he was not satisfied with this type of performance of imp, performance of peasant. And he went back to his master. And who was the master of imp? That was devil, जो राक्षस था. He went back to his master and reported the incident. इस इंसिडेंट को उसके सामने बताया. The master was also shocked. And master rebuked the imp. Master ने imp को धमका दिया. He scolded him. And what did the master say to him? That go back and spoil the life of a farmer. Make him the wild one. I am giving you 3 years. अगर 3 साल में ऐसा नहीं कर पाया, if you would not be able to make him change him, then I will throw you in a holy water. होली वाटर बोले तो शुद्ध पानी, जो हमारा होली वाटर है. ये उल्टा होता था राक्षसों का. ठीक है, कह रहा है कि मैं तुमको होली वाटर में फेंक दूंगा और तुम वहां से नष्ट हो जाओगे, वो जो भी है. और बोला 3 साल का टाइम दे रहा है. आई एम गिविंग यू ओनली 3 years. यू शुड चेंज द मैन. देन imp was totally shocked, and imp said to him that he is living with his wife without any complaint, and both are working very hard in the field, or also these type of things are happening. How should I change? Then imp said, the devil said, I don't know, I want result. मुझे रिजल्ट चाहिए. I am giving you 3 years. imp ने क्या किया? imp started to we can see come back, and that was the story of a braid which I have explained you. Then imp as a working man. अब imp ने क्या किया? He changed himself as a working man. एक मजदूर जो होता है उसके रूम में उसने अपने आप को चेंज कर लिया.
एंड स्टार्टेड टू वर्क विद द peasant. उसी peasant के साथ काम करना शुरू कर दिया. Who started to work with the peasant? The imp. What was the we can say aim of the imp? He wanted to spoil. He wanted to change him. तो peasant के साथ एज ए मजदूर उसने काम करना शुरू कर दिया और peasant की हेल्प करने लग गया. peasant बेचारा इनोसेंट था, उसको पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है. peasant उसके साथ काम कर रहा था. अब क्या हुआ? अब जब फसल बोने का टाइम आया, टाइम ऑफ क्रॉप, जब क्रॉप का टाइम आया तो उसने देखो क्या सलाह दी, क्या एडवाइस दी उसको. एडवाइस ऑफ इम्प क्या बोला कि फर्स्ट ईयर उसने एडवाइस दी कि जो शो कॉर्न इन ए लो लाइंग डैम्प प्लेस. गीले जगह पे, थोड़ा सा गीला हो, डैम्प, उस पे अपनी फसल लगाओ. दैट वाज द एडवाइस ऑफ imp to the peasant. Imp नहीं था, right now he is working man. The peasant took his advice and sowed there. उसने वहां पे उसकी एडवाइस ली और उसने वहां पे फसल बो दी. उस साल क्या हुआ? सूखा पड़ा. और that year that was completely dry year. तो others की जो फसल थी that was totally destroyed. Got it? And the peasants फसल, जो peasants की जो crop थी that was completely we can say wrong. peasant बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने डैम प्लेस पे उसको एडवाइस दिया था. अदर्स की तो वो ड्राई हो गई सबकी फसल और उसकी अच्छी फसल बनी. द peasant was very happy. एंड बहुत गर्मी हुई, सन से सबकी फसल जल गई. उसके बाद में सेकेंड ईयर व्हाट वाज द एडवाइस? बट एट दिस टाइम द peasant had enough grain. उसके पास अच्छी ग्रेन थी, कंप्लीट ईयर के लिए उसकी चलती थी. द नेक्स्ट ईयर द imp advised the peasant to show on the hill. नेक्स्ट ईयर क्या किया? peasant को एडवाइस मिली imp के द्वारा कि हिल पे फसल उगाओ. दैट वाज वेट समर, एकदम गीला, एकदम बरसात हुई खूब लोगों को, और उसकी फसल थी हिल पे और सबकी फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई. गॉट इट? अंडरस्टैंड? यानी बिटन डाउन, फलियां ही नहीं वगैरह नहीं निकली. सो दैट वाज आल्सो ए फाइन वन ईयर. वो भी अच्छा साल गया. ये तो टू एडवाइस. फर्स्ट एडवाइस डैम प्लेस पे फसल उगाओ, सबकी फसल खराब हो गई, ड्राई हो गई, उसकी अच्छी हुई. सेकेंड ईयर व्हाट वाज द एडवाइस कि यू शुड गो द फसल वी कैन से क्रॉप ऑन द हिल पे उगाओ. तो क्या हुआ? He had more grain to spare than before, so that they did not know what to do with it. अब हुआ उसका बर्बादी का रास्ता शुरू. The peasant had more grain than he wanted. उसकी जो फसल थी उससे ज्यादा उसके फसल हुई. किसके? peasant के. So उसको पता नहीं था what to do with that crop. मैं इसके साथ क्या करूं? Got it? Understand? जो ग्रेन, जो वो कैसे थे, अनाज उसका ज्यादा होगा. व्हाट डिड ही डू? देन द imp showed the peasant how he could crush the grain and make vodka from it. अब शैतान तो शैतान होता है. उसने peasant को एडवाइस दी. क्या? व्हाट वाज द एडवाइस? कि आप इसको पीस लो और इससे क्या बनाओ? वोदका बनाओ. वोदका इज अ ड्रिंक, शराब जो होती है ना, वाइन. उसके लिए उसने राजी कर लिया कि इसको ग्रेन को क्रश करो और यू शुड मेक अ वोदका. यहां से peasant की क्या हो गई? बर्बादी शुरू हो गई. And the peasant made a vodka and began to drink it himself and to give it to his friends. और क्या किया? peasant ने वोदका बनानी शुरू कर दी. Not only he becomes in the habit of drinking the vodka, and he also giving the vodka to his friends. अब क्या होने लग गया? रोज घर में महफिलें होने लग गई, लोगों को घर पे इनवाइट करने लग गया. He used to invite the people at his home, and his wife used to bring the, we can say, plates or glasses, whatever he was ordering. The wife she was used to bring that, and they were enjoying the party at their home. ये regular काम हो गया. He used to invite the friends, he used to invite the relatives to his home, and they used to drink the wine, and his wife also working very hard to show the people. The one day what happens, उसकी जो wife है that was collapsed, वो गिर गई और जो ग्लास वगैरह वो टूट गया. Then what happened? The peasant spoke angrily to his wife. What are you doing, you foolish woman?
अपनी वाइफ को, पीजेंट ड्रिंक के नशे में अपनी वाइफ को बोला यू आर ए फुलिश वुमन, तुमने क्या कर दिया, डू यू थिंक दिस इज गुड थिंग, ड्रिंक इट डर्टी वाटर दैट यू कैन पोर ऑल द फ्लोर कलर्स क्रिएचर। कह रहा है कि यार तुम क्या समझती हो ये ड्रिंक कोई डर्टी वाटर है तो तूने सारी की सारी फर्श पे डाल दी। सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द इनोसेंट पीजेंट चेंजिंग इनटू ए वाइल्ड मैन। अपनी वाइफ को डांट दिया सबके सामने, नशे में था। गॉट इट? सो व्हाट हैपन, मीम ने अपने डेविल को बोला कि देखो जब रोटी खोई थी इसकी तब इसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज ये ड्रिंक गिर गई तो ये कितना अपना वो हिंसक हो गया अपनी वाइफ के प्रति। एंड व्हाट हैपन्स इन दिस पार्टी, ए पुअर peasant came in the party. He was not invited by the peasant. Peasant के द्वारा वो invited नहीं था। He came there and he was working very hard in the field and we can say उसका गला था वो सूख रहा था, है ना, throat was dry. So what happens, he also wanted to drink vodka. When he demanded the vodka, the peasant said to him, you should go from here. I have not invited you. Why did you come here? And this is not the normal water that should I give to you. Get out from my house. मेरे घर से चले जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं देने वाला। Got it? तो इस तरीके से उसने उसको भी भगा दिया। अंडरस्टैंड? इस तरीके से उसकी स्टार्टिंग हो गई। अब क्या होता है देखो, दोनों peasant imp had gone to the devil and he reported the incident. The devil also came with him and they both were watching the drama. Now what happens, that what happens, he said the drink make them like a fox. Imp said to the devil. अब देखो what will happen when they will drink the wine. अब जैसे जैसे धीरे धीरे वो शराब पिएंगे, हर गिलास जो हर सॉरी कहते हैं अपने ग्लास, या हर जो कहते हैं कि जो भी उनका जो ड्रिंक कि वो उसमें पैग बोलते हैं जिसको बने, हर उसके साथ वो कैसे कैसे क्या करेगा देखिए। सो पहला जब उसने पहला ग्लास लिया, वेट फॉर व्हाट इज कमिंग, लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास, इट्स नाउ दे आर लाइक फॉक्स। फर्स्ट ग्लास में दे फॉक्सेस की तरह बिहेव कर रहे थे, एक दूसरे की चापलूसी करना, एक दूसरे की बड़ाई करना, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना। ये फर्स्ट ड्रिंक उनका, फर्स्ट जो ग्लास था उसके बारे में, लाइक ए फॉक्स, दे वर बिहेविंग लाइक अ फॉक्स। अभी इनको बोला अभी और वेट करो सेकंड का, अनदर ग्लास। अब उनकी जो बातें अच्छी अच्छी, दे बिकम्स वाइल्डर एंड वाइल्ड एंड हिंसक हो गए वो। दे वर अब्यूजिंग टू ईच अदर, दे वर बीटिंग टू ईच अदर, गॉट इट, दे वर शाउटिंग टू ईच अदर। अंडरस्टैंड? एक दूसरे पे नाकों पे मुक्के मारने लग गए, ऐसा बहुत ही ज्यादा विध्वंसक काम हो गया उनका। द सेकंड ड्रिंक, द डेविल वॉज दिस विद ग्रेट डिलाइट, दिस इज फाइन ही सेड, बट द इम्प रिप्लाइड वेट द बेस्ट इज येट टू कम। इनको बोला अभी तो बेस्ट और आने वाला है, बट when they would take a third glass, जब वो थर्ड ग्लास लेंगे, now they are fighting like a wolves, अब वो भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं। But let them drink one more glass, they will be like pigs. First था like a fox, चापलूसी करना, फिर सेकंड में कुछ वो नहीं किया, लड़ने लग गए। थर्ड ग्लास में क्या, वॉल्स, सेकंड में वॉल्स यानी भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे वो, और थर्ड में बोला थर्ड आने दो, दैट इज द दे विल बिहेव लाइक अ पिग्स, सूअरों की तरह बिहेव करेंगे। एंड इट ऑल्सो हैपन व्हेन दे ड्रिंक दैट, दे बिगेन टू स्टार्ट देयर होम, अपने घरों की तरफ जाने लग गए। अंडरस्टैंड? दे वर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज, शाउटिंग टू ईच अदर, some went alone, some went in twos, some went in threes, and they were walking unsteadily, ऐसे लड़खड़ा कर चल रहे थे। They were, somebody was going himself, someone three, someone two, these are the, and peasant was also coming with them to chase you off them, and they were fell in the water, नालियों में गिर गए, नाक चला गया नालियों में, ऐसी बुरी हालत हो गई उनकी तीनों की, जो भी सॉरी जितने भी बंदे थे वहां पे। दिस प्लीज द डेविल इवन मोर, और इससे डेविल बहुत ज्यादा खुश हुआ।
अब देखो डेविल क्या कर रहा है। डेविल ने कहा पिंक इंप से कि तूने बहुत अच्छी ड्रिंक डिस्कवर की है, दैट इज अ वेरी नाइस ड्रिंक, है ना। और कि जो इस ड्रिंक में अंदर क्या क्या था, दैट वाज द ब्लड ऑफ फॉक्स, जिससे कि वो दे वर बिहेविंग लाइक अ फॉक्स। ड्रिंक में तूने क्या मिक्स किया, उसका अनुमान था कि तुमने पहले ब्लड किया फॉक्स का, दे वर बिहेविंग लाइक फॉक्स। देन यू एडेड द ब्लड ऑफ वॉल्स, फिर तुमने उसमें ब्लड किया वॉल्स का, भेड़ियों का। दिस इज व्हाट मेड देम फियर्स लाइक वॉल्स। एंड द फिनिश यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स, और लास्ट में तुमने उनमें किसमें क्या किया, कौन सा ब्लड इन्वॉल्व किया, पिग्स का। ये किसके वो थी सोच, डेविल की। बट ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट डिड द पीजेंट सेड, नो, I only made certain that peasant had more corn than he needed. मैंने केवल ये बनाया कि ये उसकी जितनी कॉर्न इसको चाहिए उससे ज्यादा उसके पास होनी चाहिए। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल इज ऑलवेज इन ए मैन, बिल्कुल इंसान के अंदर वाइल्ड एनिमल का ब्लड होता है। वाइल्ड एनिमल के जो नेचर होते हैं वो पहले से होते हैं। इफ द पर्सन इज वी कैन से satisfied, if person is having whatever he is having that is enough for him, that is okay. अगर उसके पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वैसे इन चीजों को वेस्ट करता है। गॉट इट, इज दैट क्लियर। उस टाइम पे पीजेंट के पास कुछ नहीं था, अपनी ब्रेड खो दी, उसको ही वाज नॉट वरीड। बट नाउ when he had a corn space, he looked for ways of getting pleasure out of it. I showed him a pleasure drinking, and when he began to turn goat's good gift into a strong drink for his own pleasure, the blood of fox, गोट की जो सुंदर सुंदर गिफ्ट है जो कि एक इंसान को मिलती है, तो अपने ओन प्लेजर के लिए वो काम में लग गया। तब मुझे पता चल गया था कि ये अब वाइल्ड क्रिएचर बनने वाला है। तो कह रहा है कि इसमें किसी का कुछ भी नहीं था, ओनली आई हैव मेड द पीजेंट a wild animal by changing his behavior, okay, by giving him more than he wanted. That is why he do this type, we can see he does this type of things. So dear students, that was the summary of the chapter. I hope you have understood that. Got it? अब कल से अपन को इसको रेगुलर करेंगे। Got it everybody? Okay, bye.